Hello friends, today we are here for the 11th lecture of our chapter number 1 in Foundation. In this lecture, we will going to study the most important topic and its name is Gauss's theorem. In our previous lecture, we have seen something about electric flux. We also derived one formula for finding out the electric flux, and that is E of flux is equal to E A cos theta. Sometimes you can write it as E dot A, vector E dot vector A. What is that theta? Theta is the angle between vector E and vector A. Till now, we have find the flux associated with this kind of surface, right? Suppose I have this square type of surfaces or rectangle type of surfaces, then how much amount of flux associated with this surface, that we have already find out. But we have not find out the flux that is linked with the closed surfaces. Suppose I have one closed surface, right? Suppose I have one closed surface, something like this. Okay. Now I would like to find out the electric flux that is linked with this surface. So how can I find out? This is not easy, right? If you are right, if you can apply the formula like flux is equal to E A cos theta. Suppose electric field is not given, but some charge is given, Q. So with this kind of formula, it is hard to find out the electric flux that is linked with the closed surface. But I would like to find out the electric flux that is linked with the closed surface. Then the easy way is to apply the Gauss's theorem. So what is the Gauss's theorem? Gauss's theorem stated that the electric flux linked with any closed surfaces, it is equal to sigma q upon epsilon 0. The flux that is linked with the closed surfaces is the ratio of charge enclosed by the surface and epsilon 0. What is this sigma q? This is charge enclosed by the surface. See, Gauss's law, the total electric flux associated with any closed surface. Please point out that you can apply Gauss's theorem only when there is a closed surface. If the surface is open, you cannot apply Gauss's theorem. If surface is closed, then and only then you can apply Gauss's theorem. So the total electric flux associated with any closed surfaces is equal to the ratio of the net electric charge. See, net electric charge. What do you mean by net electric charge? Suppose I have this closed surface, right? So here plus q charge is there. Suppose plus 2q charge is there. Suppose plus 5q charge is there. And suppose minus 2q charge is there. So what is the net electric charge that is enclosed by this surface? It is 5 plus 2 plus 1, 8. 8 minus 2 means net electric charge is what? Net electric charge is 6q. Hello, when you are talking about the net charge, means you have to consider the sign. If sign is positive, you can add the charges. If sign is negative, you can subtract the charges. So the statement said that the flux associated with any closed surface is equal to the ratio of net electric charge enclosed by the surface. See, you have to consider the charges that is only enclosed by the surfaces.
You should not consider the charges that is outside that surfaces. Suppose this is the charge distribution, right? Suppose this is the closed surfaces. 1 lakh q charge is outside that closed surfaces, and if I am talking about what is the flux associated with this closed surfaces, at that time you should apply this formula. In this formula, what is sigma q? Sigma q is the charge enclosed by the surfaces. 1 lakh q charge is outside the surfaces. Even though its value is too big, but you should not consider it. Right? You have to consider only the enclosed charge. And enclosed charge is what? 6q upon epsilon 0. So this is the flux link with this closed surfaces. Right? So I hope you guys understand what is the statement. Gauss's law is very important. Why it is very important? Because the formula is too small and very easy to remember. With this kind of formula, you can easily find the electric flux. Once you are able to find out what is electric flux, then after you can easily find out what is the electric field. Ultimately, Gauss's theorem is helpful to us to find out the electric field. How can it helpful to find out the electric field? Because with the use of Gauss's theorem, you can easily find out electric flux. And as we know that flux is equal to EA cos theta. Once you find out the flux, area, it is given. Theta, you can also find out. So you can easily find out what is electric field. So ultimately, Gauss's theorem is beneficial to find out the electric field. Right? This is the equation number 1. Phi is equal to sigma q upon epsilon 0. The law implies that the total electric flux through a closed surface is 0 if no charge is enclosed by the surfaces. Suppose I have this closed surface, right? Here there is 1000 q charge is there, plus 3000 q charge is there, minus 7000 q charge is, minus 70,000 q charge is there. So if I am talking about what is the net electric flux linked with this closed surfaces, means it is 0. Why it is 0? Because no charge is enclosed by this surface. Even though there are very high value of charges outside the surface, but still no charge is enclosed by this surface, means sigma q is 0, and if sigma q is 0, flux associated with this closed surface is 0. So this is all about Gauss's law. See, important points related with Gauss's law. First point, Gauss's law is true for any closed surfaces, no matter what is its size or shape. If your closed body is something like this, you can apply Gauss's law. If your closed body is this much big, you can also apply Gauss's law. If your closed body is this much, you can also apply Gauss's law. So it doesn't depend on the size and the shape. It can apply any size or any shape. Gauss's law is true for any closed surfaces, no matter what is its shape or size. Second, the term q on the right side of equation number 1. What is equation number 1? Flux is equal to sigma q upon epsilon 0. So what is there in the right side? Sigma q is there. They are saying that the term q on the right side of equation number 1 includes the sum of all charges enclosed by the surfaces. The charges may be located anywhere inside the surface. Third, the surface that we choose for the application of Gauss's law is called Gaussian surface. Suppose there are few charges, plus q is there,
plus 3q is there, plus 7q is there, plus 8q is there, minus 7q is there, plus 2q is there, minus 1q is there. So what is the flux associated with this closed surface, right? So you should assume one Gaussian surface. This closed surface is nothing but the Gaussian surface. They are saying that the surface that we choose for the application of Gauss's law is called the Gaussian surface. So this surface is known as Gaussian surface, right? Fourth one is important. Gauss's law is useful towards a much easier calculation of electric field when system has some symmetry charge. With the help of Gauss's law, you can easily find out electric field, but it is easy only when there is symmetry system, symmetry charge distribution system. What do you mean by symmetry charge distribution system? I will explain. See, this time you do not have a charge, but a charge distribution is there. Suppose I have one rod, metal rod, and I distributed charges on this rod uniformly, means there is the uniform distribution of charges, plus 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 plus, means पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे पूरी तरह से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. And if I am saying that what is the electric field, what is the electric field at point P, that is at the distance of r from this rod. So at that time it is hard to find out electric field by using the equation kq upon r square, because this time you do not have a single charge. Hello, this is the distribution of charge. If you have a single charge, suppose you have a positive plus q charge is there, and if you want to find out the electric field at point P, then you have an equation E is equal to kq or upon r square. But this is not a single charge, this is the distribution of charge. So what do you do to find out the electric field at this point? It is very hard, but by applying Gauss's theorem it is very easy, and within a short period of time you can easily find out what is the electric field at this point P. So how can you find out electric field? This we will discuss in our standard 12. But right now you should assume that you do not have to worry about how can you find out the electric field at this point by using Gauss's theorem. Right now we will discuss what is the Gauss's theorem, that's it. The application related with the Gauss's theorem, that we will see in our standard 12. So this is the uniform, or you can say that symmetry type of distribution. I will give another example. Suppose you have one sheet, right? One plane is there, and uniformly I will distribute the charges on it. Means ये सरफेस पे क्या हो जाएगा, ये सरफेस पे पूरी तरह से मैंने ऐसे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. इस तरह से. And if I am saying that what is the electric field at point P, that is at distance r from that plane surface, at that time it is hard to find out the electric field by using equation E is equal to kq upon r square. But here distribution, uniform distribution is there, so it is easy to find out the electric field at point P by using Gauss's theorem. So this is the symmetry kind of distribution. If the distribution of charge is symmetry kind, then Gauss's theorem is very easy to find out the electric field. Suppose सीट की जगह पे ऐसा कोई शेल होता और
ये शेल पे मैंने पूरी तरह से चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर कोई मेरे को ये पूछेगा कि यहां से ये पूरे शेल, सपोज कि ये कैसा शेल है, तो ये शेल के ऊपर मैंने पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर कोई मेरे को ये पूछेगा कि यहां से r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एट दैट टाइम इट इज इजी to find out the electric field by using Gauss's theorem. So this is nothing but the uniform type of charge, symmetry type of charge distributions. So in point 4 they are saying that Gauss's law is useful towards a much easier calculation of electric field when system has symmetry. Symmetry, now you will understand what is the meaning of that symmetry, right? Okay. Now I will give you few examples related with this equation sigma q upon epsilon 0. As shown in figure, the electric flux associated with the closed surface is what? At last, you have only one equation, flux for a closed surface. It is given by the equation sigma q upon epsilon 0. Sigma q means the charge enclosed by the closed surfaces. Here plus q is there, minus q is there, so net charge is what? Net charge is 0. If net charge is 0, then flux is what? Net charge upon epsilon 0. So 0 upon epsilon 0 means total flux linked with this closed surface is what? Is 0. Even though 2q and q is there, but you should not consider that. Why? Because you have to consider only the enclosed charge, not the outside one. Okay. See, 1 point electric charge q is placed at P. A closed spherical surface is placed near the point P. The electrical total flux passing through a surface of the sphere is what? 1 point electric charge is there. So they are saying that plus q charge, plus q point charge is there, and near that point q charge one closed surface is there. So what amount of flux associated with this closed surfaces? Very easy. The flux associated with the closed surface is given by the Gauss's theorem. And what is Gauss's theorem? Gauss's theorem is flux is equal to sigma q upon epsilon 0, and sigma q is the charge enclosed by the closed surfaces. Here no charge is enclosed by the surfaces, means 0 upon epsilon 0, so your answer is 0. See, in this equation it is also 0, right? See, when a 10 microcoulomb charge is enclosed by a closed surface, the flux passing through the surface is phi. Now, another minus 10 microcoulomb charge is placed inside the closed surface, then flux associated through the surface is what? In this case, they are saying that plus 10 microcoulomb charge is enclosed by a closed surface and the flux is phi. See, ऐसी कोई सिचुएशन है 10 माइक्रोकूलम चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है और तब हम फ्लक्स का कैलकुलेशन करें तो वो कितना आएगा? चार्ज एनक्लोज बाय द बॉडी अपॉन एप्सिलॉन 0. दिस इज द फ्लक्स एंड फ्लक्स इज phi. Up to this line we will get this phi is equal to 10 microcoulomb upon epsilon 0. Now they are saying that another minus 10 microcoulomb charge is placed inside the closed surface. Plus 10 microcoulomb तो अंदर था ही, ये तो था ही, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अंदर minus 10 microcoulomb डाल रहे हैं, तो अभी नया फ्लक्स, न्यू फ्लक्स कितना आएगा? 0. हेलो, सिग्मा क्यू नेट चार्ज इज 0. In this case, in second case, net charge is 0, means the new flux will be 0.
suppose I add plus 10 microcoulomb. Now what will happen? Now new flux will be what? New flux will be 10 microcoulomb plus 10 microcoulomb. It is 20 microcoulomb. 20 microcoulomb means what? 2 into 10 microcoulomb upon epsilon 0. But what is that 10 microcoulomb upon epsilon 0? This is our old flux. So new flux will be what? New flux will be double than the old one. So the new flux will be 2 phi. If you add plus 10 microcoulomb inside the closed surface, at that time the new flux will be 2 phi. But if you add minus 10 microcoulomb inside the closed surface, the new flux will be 0. Here they are asking minus 10 microcoulomb. So the answer is 0. But see, in March 2012 board exam, they are saying that if plus 10 microcoulomb is added, then the answer is what? Then the answer is A. What is A? Answer A is 2 phi. Hello. See, a charge is placed at the center of a cube. The electric flux emerging out from any surfaces of the cube is what? See, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ी बहुत क्यूब के रिलेटेड डिस्कशन आपको बता देता हूं. मैं अलग अलग केसेस बताना चाहता हूं आपको. मेरे पास क्यूब है. शेप कौन सा है? क्लोज सरफेस का शेप कौन सा है? क्यूब जैसा है. मैं चार्ज कहां पे प्लेस कर रहा हूं? चार्ज में कहां पे प्लेस कर रहा हूं? पहले केस में एग्जैक्ट सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ क्यूब. दूसरे केस में मैं चार्ज कहां पे प्लेस कर रहा हूं? एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ इट्स फेस. तीसरे केस में मैं चार्ज कहां पे प्लेस कर रहा हूं? एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड. और फोर्थ केस में मैं चार्ज कहां पे प्लेस कर रहा हूं? एट द वर्टेक्स, एट द एनी वर्टेक्स, एट द एनी वर्टेक्स ऑफ द क्यूब. ये चार अलग अलग सिचुएशन है. हमारे पास शेप क्यूब का है. ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, ये चौथा केस है. दिस इज आई, दिस इज डबल आई एंड दिस इज फोर्थ वन. राइट. मेरे को क्या करना है? एनक्लोज्ड चार्ज कितना है वो फाइंड आउट करना है. एनक्लोज्ड चार्ज के बाद फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्यूब कितना आता है वो फाइंड आउट करना है. और लास्ट फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच साइड, ये कितना आता है वो मेरे को फाइंड आउट करना है. सो लेट अस सी. हेलो. ये सारे किस्से पे मेरे को फ्लक्स कितना कितना आता है वो फाइंड आउट करना है. पहला जो किस्सा है हमारा वो क्या है? हमारा पहला किस्सा ये बताता है कि हमारे पास एक क्यूब है. ऐसा कोई क्यूब होगा हमारे पास?
और वो क्यूब के एग्जैक्ट सेंटर पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। प्लस क्यू चार्ज को आप इस तरह के बॉल के रूप में सोच सकते हैं कि अगर ऐसा कोई चार्ज है तो ये चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं, आई एम प्लेसिंग दैट पॉजिटिव क्यू चार्ज inside this cube at the exact center of the cube, right? So now this is the closed surface, cube is the closed surface, and I place this charge at the center of the cube. So what is the enclosed charge? In this case, enclosed charge is what? Enclosed charge is this. So in our first case, enclosed charge is what? Q. Suppose अगर ये कोई क्यूब है तो ये कोई उसका एक फेस होगा। हेलो, दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये चार्ज को एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं रख रहा हूं, मैं ये चार्ज को ये फेस के सेंटर में रख रहा हूं। मतलब मैं ये चार्ज को इस तरह से रख रहा हूं। अगर इस तरह से मैं अपने चार्ज को रख रहा हूं, सो व्हाट इज द चार्ज दैट इज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस? अभी ये क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? पूरा अंदर नहीं है, सिर्फ आधा ही अंदर है। if only half charge is inside the cube, means the net enclosed charge is what? Is Q by 2. Hello, when you place your charge at the center of one of its face, एक फेस के सेंटर पे लगाओगे तो एनक्लोज चार्ज कितना आएगा? Q by 2. सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी ये क्यूब की कोई एक साइड ले लेता हूं और वो साइड के सेंटर पे, यहां पे नहीं, पूरा ऐसा सेंटर पे, ऐसा पूरा गोल समझो इधर, अगर यहां पे मैं एक चार्ज रख देता हूं तो ये क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? देखो, ऊपर का आधा पोर्शन तो निकल ही गया, नीचे वाला आधा पोर्शन के अंदर भी छोटा सा जो पीस है वो तो बाहर ही है। मतलब पहले तो आधा, पूरे में से पहले का आधा निकल, वो तो आउटसाइड ही है, फिर नीचे आउटसाइड रहता था। मतलब कि क्या हो रहा था, आप देखो एक बार, अगर मैं अपना चार्ज यहां पे रखता हूं, यहां पे किसी एक साइड के सेंटर पे रखता हूं, तो ये पूरे में से ये जो अपर पोर्शन है, जो ऊपर का जो आधा पार्ट है, वो तो चला ही जाएगा। देखो, ये पूरा पोर्शन है, उसमें से ये ऊपर का आधा पोर्शन निकल जाएगा। तो अगर ऊपर का आधा पोर्शन निकल गया तो फिर बचा क्या? ये आधा पोर्शन ही बचा ना। हमारा क्यूब तो ऐसे है, हेलो, ऐसे था पूरा, ऊपर का आधा निकल गया, फिर नीचे का आधा बचा। नीचे के आधे में से भी एनक्लोज कितना है? सिर्फ इतना पोर्शन ही एनक्लोज है। तो अगर आप किसी साइड के सेंटर में अपने चार्ज को रखते हैं, तब जाके आपका एनक्लोज चार्ज कितना होगा? एनक्लोज चार्ज फोर्थ पार्ट होगा, Q by 4। आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। देखो, अगर मैं किसी फेस सेंटर पे रखता था तो ये आधा अंदर है कि नहीं, आधा बाहर है, आधा अंदर है। मतलब कि ऐसा ही एक क्यूब में यहां पे रख देता, 2 क्यूब करता तो ये वाला चार्ज मेरा सेंटर पे आ जाता। हेलो, मैं से 2 क्यूब करता तो ये वाला चार्ज अपने सेंटर पे आ जाता। मतलब कि 2 क्यूब से मेरा इनक्लोज चार्ज कितना है? Q। तो एक क्यूब से मेरा इनक्लोज चार्ज कितना होना था? Q by 2 होना था। अभी यही केस में आप
समझो, अगर मैं किसी साइड के सेंटर पे रखता हूं तो अगर यही चार्ज, तो ऐसे कितने क्यूब लगेंगे? एक क्यूब यहां लगेगा, एक क्यूब यहां लगेगा, एक क्यूब ऊपर लगेगा, एक क्यूब यहां पे लगेगा। 4 क्यूब की बदौलत, ये 4 क्यूब की सहाय से मैं ये चार्ज को सेंटर पे कंसीडर कर सकता हूं। मतलब कि 4 क्यूब जब आएंगे तब ये पूरा क्यू एनक्लोज होगा, लेकिन हमको तो सिर्फ एक ही क्यूब का चाहिए। अगर एक ही क्यूब का चाहिए तो ये कितना होगा? Q/4 होगा। और लास्ट केस देखो, अगर मैं किसी वर्टेक्स पे रखता हूं इसको, अगर किसी वर्टेक्स, एक क्यूब की बदौलत कितना चार्ज अंदर आएगा? अगर ये जानना है तो पहले ये सोचो कि अगर यही चार्ज है, अगर यही चार्ज को मुझे सेंटर में लाना हो तो इतने, ये से कितने क्यूब लगेंगे? एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक आगे लगेगा, एक यहां पे लगेगा, 4 नीचे और सेम 4 ऊपर। 8 क्यूब की बदौलत, 8 क्यूब की बदौलत मैं एक कैपिटल क्यू को सेंटर में रख पाता हूं। तो एक क्यूब का हिस्सा कितना होगा? एक क्यूब का हिस्सा होगा Q/8, Q/8। आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स आया वो। अगर एनक्लोज चार्ज Q है तो फिर तो क्या करना है? एनक्लोज चार्ज के नीचे ε0 लगा देना है। अगर एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ इट्स फेस है और आपको क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होता है वो आपको पूछा गया है, तो आपको तो क्या करना है? सिर्फ एनक्लोज चार्ज के अपॉन में ε0 कर देना है। तो आंसर क्या आएगा? Q/2 ε0। ये केस में देखो, यहां पे भी एनक्लोज चार्ज Q/4 के ε0 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा? Q/4 ε0। यहां पे भी आप देखो, प्लस Q/8 को ε0 से डिवाइड कर दो तो Q/8 ε0। तो ये सारे आंसर आने थे आपको, ठीक है। मैं एक एक बारी आपको 3D वाली फिगर भी दिखाता हूं। ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं, पहले आप ये देख लो। ये पहला किस्सा, अपना चार्ज क्यूब के बराबर बीच में है, तो एनक्लोज चार्ज कितना होगा? Q। अगर हमारा चार्ज कोई भी एक, सपोज कि ये लेफ्ट वाला हमारा मेन क्यूब है, तो अगर हमारा चार्ज किसी एक फेस के बीच में है तो ऐसे 2 क्यूब लगेंगे। ये 2 क्यूब की बदौलत आप ये चार्ज को बीच में रख पाते हो। मतलब कि पूरा क्यू अंदर है कब? जब 2 क्यूब आएंगे। तो एक क्यूब का हिस्सा कितना? Q/2। तो ये केस में Q/2 ε0 होना था। अगर मैं किसी साइड के सेंटर पे रखता हूं, किसी साइड के, सपोज कि ये हमारा मेन क्यूब है, हेलो, सपोज ये हमारा मेन क्यूब है, तो यहां पे देखो ऐसे कितने क्यूब लगे? 1 2 3 4, 4 क्यूब की बदौलत ये पूरा चार्ज क्यू एनक्लोज हुआ। तो अगर 4 क्यूब हो गए तो एक चार्ज क्यू आया एनक्लोज में। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही क्यूब है तो एक ही क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा? Q/4 होना था। और ये वाला किस्सा आप देखो, किसी एक वर्टेक्स पे हमारा क्यू है, किसी एक वर्टेक्स पे हमारा क्यू है, तो ऐसे कितने हो? 1 2 3 4, ऊपर ऐसे 4, टोटल 8 क्यूब। 8 क्यूब की वजह से हमारा चार्ज बीच में आता है। तो अगर 8 क्यूब मिला हो तो एक चार्ज क्यू बीच में आता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्यूब है तो उसका हिस्सा कितना होगा? Q/8 जितना होगा। तो ये केस में Q/8 ε0 आया। फिर मैंने जो चौथी बार जो ये बात थी वो पूरी कॉलम खाली रखी है। आप देखो ये वाली कॉलम खाली रखी है। ये क्या है? फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच साइड। पहला वाला किस्सा देखो आप, अगर मेरा चार्ज एग्जैक्टली बीच में है, ये चार्ज है तो उसमें से क्या होगा? चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती होगी। कैसे बाहर आती होगी? सपोज अगर ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलेगी,
नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड आएगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लेने से छुम 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 छुम, सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेने से बाहर आती होगी। आपको ये किस्से में पूछा गया है कि अगर आप ये चार्ज Q को बीच में रखते हो तो सिर्फ एक फेस, ओनली वन फेस, एक फेस में से, एक ही फेस में से कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखो पूरे क्यूब में से कितना होता है, पूरे क्यूब में से होता है Q बाय एप्सिलॉन 0। पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स लिंक होता है, Q बाय एप्सिलॉन 0। लेकिन ये Q बाय एप्सिलॉन 0 फ्लक्स कौन कौन सी सरफेस में से पास होता है, तो आपका चार्ज किसी भी फेस को टच नहीं कर रहा है। मतलब कि आपका चार्ज में से जो भी फील्ड लाइंस पास होती है वो 6 की 6 साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, आगे वाली साइड, पीछे वाली साइड, ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड, टोटल जितनी 6 की 6 साइड है वो 6 साइड में से आपका Q बाय एप्सिलॉन 0 फ्लक्स निकल रहा है। तो सिर्फ एक ही फेस का पूछ रहा हूं कि अगर ये फेस का हिस्सा कितना, तो इसका जितना हिस्सा होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही नीचे वाले का होगा, उतना ही आगे वाले का होगा, उतना ही पीछे वाले का होगा। तो Q बाय एप्सिलॉन 0 को हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको अगर ये फाइंड आउट करना है कि हर एक फेस में से, ईच फेस में से कितना फ्लक्स लिंक होता है, तो कि इसका Q बाय एप्सिलॉन 0 को 6 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब Q बाय 6 एप्सिलॉन 0, Q बाय 6 एप्सिलॉन 0, ये हमारा आंसर आएगा। अगर दूसरे केस में आप देखो तो हमारा चार्ज किसी एक फेस के बीच में है, किसी एक फेस के बीच में है, मतलब कि क्या, आपका चार्ज एक फेस को टच कर रहा है, फील्ड लाइंस बाहर आती है, हेलो, आपकी फील्ड लाइंस बाहर आती है, बाहर आती है मतलब कैसे, ये वाला जो चार्ज है उसमें से यहां पे बाहर आएगी, आगे आएगी, पीछे आएगी, नीचे आएगी, ऊपर आएगी, लेकिन जिस फेस को आपका चार्ज टच कर रहा है फील्ड लाइन उसी फेस में पास नहीं होगी। फील्ड लाइन क्या यहां से निकल के उसी फेस में वापस नहीं जाएगी। आपका चार्ज कितनी फेस को टच कर रहा है, सिर्फ एक फेस को टच कर रहा है। अगर एक फेस को टच कर रहा है मतलब उस सरफेस में से कोई भी फ्लक्स पास आउट नहीं हो रहा है। तो बाकी बची कितनी सरफेसिस, 5 सरफेसिस। हमारा टोटल क्यूब का फ्लक्स कितना है, दूसरे केस में टोटल फ्लक्स का क्यूब कितना है, Q बाय 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन ये Q बाय 2 एप्सिलॉन 0 बनाने के लिए सारी की सारी 6 की 6 साइड का हिस्सा नहीं है। हिस्सेदारी किस किस की है, सिर्फ 5 साइड की हिस्सेदारी है, क्योंकि ये 5 साइड में से Q बाय 2, 5 साइड तो नहीं बोल सकते, 5 फेस, ये 5 फेस में से Q बाय 2 एप्सिलॉन 0 फ्लक्स निकल रहा है। समझ रहे हैं? आपका चार्ज जितनी सरफेस को टच होता है वो सरफेस में से कोई फ्लक्स पास आउट नहीं होता है। तो बाकी कितनी बची, 5 साइड बची, 5 फेस बची। आपको यह फाइंड आउट करना है कि ईच फेस, हर एक फेस में से कितना फ्लक्स पास आउट होता है। तो पूरे क्यूब में से Q बाय 2 एप्सिलॉन 0 निकल रहा है, तो ऐसी 5 साइड है, 5 साइड का मिला के, 5 साइड का मिला के Q बाय 2 एप्सिलॉन 0 हो रहा है। तो एक साइड तो नहीं बोल सकते, फेस बोलना चाहिए, मेरे को बार बार दिक्कत आ रही है, लेकिन आप समझो 5 फेस को मिला के Q बाय 2 एप्सिलॉन 0 हो रहा है। तो एक फेस का हिस्सा कितना होगा, एक फेस का हिस्सा कितना होगा, तो कि Q बाय 2 एप्सिलॉन 0 को 5 के साथ हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक फेस का हिस्सा कितना आया, Q बाय 10 एप्सिलॉन 0। हेलो,
तीसरा केस देखो, आपने किसी साइड के सेंटर में रखा चार्ज को, तो अगर ये साइड के सेंटर में आप चार्ज को रखते हैं तो आपका चार्ज अभी दो फेसिस को, दो सरफेसेस को टच कर रहा है, ये वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस। तो बाकी कितनी सरफेस बची? 4 सरफेस बची, पीछे वाली, आगे वाली, सामने वाली और नीचे वाली। रे सरफेस की बात कर रहा हूं। अगर आपका चार्ज किसी साइड के सेंटर में है तो वो दो सरफेस को टच करता है। अगर दो सरफेस को टच करता है तो आपको वो दोनों को नहीं देखना है। पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स निकला? पूरे क्यूब में से फ्लक्स निकला Q/4ε0। अगर पूरे क्यूब में से Q/4ε0 फ्लक्स निकला तो ये Q/4ε0 बनाने के लिए कितनी सरफेस इसका हिस्सा है? हिस्सेदारी कौन कौन सी सरफेस की है? सिर्फ 4 सरफेस की हिस्सेदारी है। बाकी के 2 सरफेस में से तो फ्लक्स 0 आ रहा है। पूरे क्यूब में से Q/4ε0 आ रहा है। अगर मेरे पास 10 रुपए है और वो 10 रुपए मैंने 6 लोगों के बीच डिवाइड किए, सपोज समझो कि मेरे पास 12 रुपए है, ये इजी रहेगा इसलिए बोल रहा हूं। सपोज मेरे पास 12 रुपए है और 12 रुपए मैंने इक्वली सभी के बीच डिवाइड किए, तो क्या होना था? सपोज कि वो 6 लोगों में से किसी 2 लोग को तो मैंने कोई रुपए दिए ही नहीं, उन लोगों को 0-0 रुपए दिए, तो बाकी के 4 को मैंने कितने कितने दिए होंगे? 3-3 रुपए दिए होंगे। तो 4 लोगों का मिला के 12 होता है, 6 लोगों का मिला के भी 12 होता है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि पूरे क्यूब में से Q/4ε0 निकल रहा है, अगर पूरे क्यूब में से Q/4ε0 निकल रहा है मतलब हिस्सेदारी यहां पे सभी के सभी 6 साइड की नहीं है, हिस्सेदारी सिर्फ 4 साइड की ही है। लेकिन पूरे क्यूब की बात करो तो Q/4ε0, लेकिन इसमें हिस्सेदारी किसकी है? सिर्फ 4 फेस की है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि किसी भी एक फेस में से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, अगर किसी भी एक फ्लक्स में से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको करना होगा Q/4ε0 को 4 के साथ डिवाइड करना होगा। क्यों 4 के साथ? क्योंकि अभी आपका चार्ज सिर्फ 4 फेस में से ही पास हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा? Q/16ε0। और अगर मैं किसी चार्ज को इस तरह से किसी वर्टेक्स पे रखता हूं, किसी भी वर्टेक्स पे रखता हूं, तो क्या होना था? एट दैट टाइम आपका चार्ज सिर्फ 2 नहीं 3 सरफेस को टच करता है, ऊपर वाली सरफेस को, ये वाली सरफेस को और ये आगे वाली सरफेस को। अगर वर्टेक्स पे मैं चार्ज रखता हूं तो मेरा चार्ज 3 सरफेस को टच करता है। तो अगर पूरे क्यूब में से Q/8ε0 फ्लक्स निकल रहा है, तो ये Q/8ε0 फ्लक्स बनाने के लिए कितनी सरफेस की हिस्सेदारी है? सिर्फ बाकी बची 3 सरफेस की, क्योंकि ये चार्ज जिन जिन फेसिस को टच करता है उसमें से तो कोई फ्लक्स निकलने वाला नहीं है। अगर उसमें से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, फिर भी अगर पूरे क्यूब में से Q/8ε0 फ्लक्स निकल रहा है, तो ये Q/8ε0 बनाने के लिए पूरे के पूरी 6 सरफेस की हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ 3 सरफेस की हिस्सेदारी है। अगर मैं ये बोलना चाहूं कि किसी भी एक सरफेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो आपको क्या करना होगा? Q/8ε0 को 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 3 सरफेस ही ये हिस्सेदारी कर रही है। सो आंसर क्या आएगा? Q/24ε0। सो ये पूरा टेबल आप वीडियो पॉज करके कहीं पे भी आपके मॉड्यूल के अंदर लिख लीजिए। दिया तो गया ही है आपके मॉड्यूल में, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से ये सीक्वेंस बराबर है। क्यों? क्योंकि आपके मॉड्यूल में क्या दिया गया है? पहला केस ये लिया गया है, देखो
पहला केस हमारे जैसा ही है कि चार्ज एग्जैक्टली बीच में है, तो फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्यूब, क्यूब में से कितना आएगा तो कि Q अपॉन एप्सिलॉन 0। पर किसी भी एक साइड तो नहीं बोलना चाहिए, फेस बोलना चाहिए, किसी भी एक फेस में से कितना आएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। ये चौथा किस्सा है, लेकिन मैंने अभी आपको ये दूसरा बताया। देखो आपके मॉड्यूल में ये चौथा किस्सा है, लेकिन आप चौथे वाले को दूसरा बना दो, दूसरे वाले को चौथा बना दो, तो सीक्वेंस इजी रहेगा याद करने में। अगर हमारा चार्ज किसी भी फेस के बीच में है तो आधा अंदर है आधा बाहर है। अगर क्यूब का पूछे तो Q बाई 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन साइड का पूछे तो हमारा चार्ज सिर्फ एक ही सरफेस को टच होता है, तो बाकी बची 5 सरफेसेस, तो जो आंसर क्यूब का है उसको 5 के साथ डिवाइड कर दो, Q बाई 10 एप्सिलॉन 0। फिर ये देखो किसी भी साइड के सेंटर में है चार्ज, तो ये इस वक्त हमारा चार्ज एनक्लोज कितना होना है Q बाई 4, और क्यूब में से कितना फ्लक्स होगा पास आउट Q बाई 4 एप्सिलॉन 0। लेकिन हमारा चार्ज दो सरफेस को टच करता है। अगर दो सरफेस को टच करता है मतलब कि क्या, दो सरफेस को टच करें मतलब कि ये दोनों सरफेस में से कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, बाकी बची 4 सरफेस, तो ये Q बाई 4 एप्सिलॉन 0 को 4 के साथ डिवाइड करो तो Q बाई 16 एप्सिलॉन 0, ये आपका आंसर रहेगा। और ये वाला किस्सा देख लो, अभी आप किसी वर्टेक्स पे रखते हो तो Q बाई 8 एनक्लोज चार्ज रहेगा। अगर Q बाई 8 एनक्लोज चार्ज है तो पूरे के पूरे क्यूब में से Q बाई 8 एप्सिलॉन 0 जितना चार्ज जितना फ्लक्स लिंक होगा, और अभी आपका चार्ज 3 सरफेस को टच करता है, तो बाकी बची 3 सरफेस की हिस्सेदारी होगी, तो Q बाई 24 एप्सिलॉन 0, ये किसी भी एक फेस, साइड तो नहीं, यहाँ पे फेस होना चाहिए, किसी भी एक फेस में से कितना फ्लक्स लिंक होगा Q बाई 24 एप्सिलॉन 0। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। ये चारों की चारों जो फिगर है ये भी आप अपने हिसाब से कहीं पे भी मॉड्यूल पे बना लो। ये वाले सेक्शन के सामने 1 2 3 4 नंबर के सामने ये वाली फिगर है, सब बना लो, क्योंकि आपके मॉड्यूल में ये 3D इमेजेस नहीं दी गई है। ये देखो, ये सारी इमेज बना लोगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये वाला हमारा किस्सा देख लो एक, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। हमारे पास ऐसा कोई एक स्क्वायर दिया गया है, और ये स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे हमको कोई चार्ज दिया गया है। आपको ये पूछ रहे हैं कि ये सरफेस में से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो देखो हम गॉसेस थ्योरम तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ओपन सरफेस है। अगर ये सरफेस ओपन है तो हमारे पास इक्वेशन बनता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया नहीं है। तो या तो आप कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, या तो कहीं से भी इस सरफेस को क्लोज सरफेस में कंसीडर करो। मैं क्या करता हूं, ये वाला जो चार्ज है और नीचे जो सरफेस है, ऐसे में अलग अलग 6 सरफेस ले लेता हूं, एक नीचे, एक साइड में, एक ऊपर, एक यहाँ पे, एक आगे, एक पीछे, ऐसी 6 सरफेस बना दूं तो क्लोज सरफेस हो गया। अगर क्लोज सरफेस हो गया तो पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलना है, पूरे क्यूब में से तो Q बाई एप्सिलॉन 0 निकलना है, और मेरे पास तो सिर्फ एक ही फेस है। अगर एक ही फेस है तो ये फेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा, 6 तो नहीं है अभी हमारे पास तो सिर्फ एक ही है, तो एक ही है तो आंसर कितना आना है Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। तो ये वाले किस्से में हमारा आंसर क्या आना है, Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। चार्ज कितना है, चार्ज हमारे पास है 10 माइक्रोकूलम, सो 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम अपॉन 6, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो आप पहचानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर साइड दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आप क्या करोगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा करोगे। ठीक है, एरिया क्या लोगे, 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10⁻⁴। थीटा तो समझो, चलो आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आपको ई कहीं से नहीं मिलेगा। आप इसी के बारे में सोचते रहेंगे और आपका आंसर नहीं आएगा। सो दिस इज द वे। आपको क्या करना है, ये फेस के आजू बाजू में इमेजिनरी बाकी 5 फेस बना देनी है, और उस 5 फेस और ये फेस की टोटल 6 फेस की मदद से एक क्यूब सोचना है। और वो क्यूब सोचोगे तो आपको क्या करना है, पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, तो ये सरफेस में से कितना निकलेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0। समझ में आ रही है बात आपको? तो यही सॉल्यूशन आपको दिया गया है। देखो आप, सरफेस एक ही थी, लेकिन ऐसा पूरा, ये हमारी मेन सरफेस है, ये जो नीचे वाली है ना, वो हमारी मेन सरफेस है, उसके आजू बाजू में ऐसी 5 और सरफेसेस बना दी गई, और ऐसे करके एक क्यूब बना लिया। तो क्यूब में से कितना आना था, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, तो एक फेस में से कितना आएगा, एक फेस में ऐसे आएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ओके, today we stop here. That's it from today's lecture. I hope you guys understand this. Please write down this table anywhere at this topic in your module. जितनी भी बातें हम लोगों ने की है, वो एक बार ध्यान से मॉड्यूल में से रीड करना, और उसके बाद इसका होमवर्क करना। ठीक है, so that's it from today's lecture. जय हिंद, जय भारत, अस्तु। थैंक यू।